So yesterday we had started with this chapter, job analysis and evaluation, and I started with job analysis, its introduction and its definition. We have done its definition also. Okay, we have done its process. Now we'll start with methods. See, now there are several methods to analyze the job. For job analysis, how to analyze the job, who should be the person, and what is the position, and what are the duties and responsibilities that a person has to fulfill while coming to the job. So there are many methods. Okay, few of them are discussed here. See, first is interview method. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Yeah. So we have first method as interview method. Now by its name, you will be able to understand what is interview method. Interview means you come to know about the job and the person who has to be appointed for the job. That means an employee, about his qualifications and about his experience by interviewing them, by interviewing with them. So interview method means by asking them questions and getting information through asking questions and having an interactive sessions with employees, with different persons, to get to know the information about employees, their experience, their qualification. So that is known as interview method. See, it is written, the best way of gathering information about the job, job information, is to have an interview. Okay. Now what is happening in this method? In this method, job analyst, sorry, it is analyst. जॉब एनालिस्ट मीन्स जो जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, जो एनालिसिस करता है, ठीक है, जो जो जानकारी निकालेगा उसको बोलते हैं जॉब एनालिस्ट. Now job analyst ask questions directly to the employees and collect the necessary information about the job. मतलब एम्प्लॉय से आप सारी इंफॉर्मेशन निकालोगे क्वेश्चंस पूछ कर. जॉब के बारे में सारे क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए. So this is how you gather the information about the job. How many number of employees are working. So मैम आवाज accordingly, ब्रेक हो रही है. yes, आवाज ब्रेक हो रही है. Is it now clear? Is it now clear? Unmute करके बोलो ना. Is it now clear? यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So इंटरव्यू मेथड से क्या होता है? इंटरव्यू मेथड में जो इंटरव्यूअर होता है, जैसे जॉब मैम ब्रेक हो रही है. फिर से. Still breaking your voice. Okay, let me come to the another. Wait. Let me shift to the another Wi-Fi connection. चलो. तो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है? एक इंटरव्यूअर होता है जो जो एम्प्लॉय से आज क्वेश्चंस पूछ के सारी इंफॉर्मेशन जॉब के बारे में निकालता है. ठीक है. तो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उतने इंटरव्यूज होते हैं, या फिर आप ग्रुप इंटरव्यू भी ले सकते हैं. ओके. अभी इंटरव्यू क्यों लिया जाता है उसका मैंने आपको पर्पस बताया, जॉब की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. ठीक है. लेकिन थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है. क्यों? क्योंकि आपको सबसे क्वेश्चंस पूछने हैं ना. ओके. सो you need to, interviewer has to ask questions, like how you feel your working hours are, how is the working condition of the company, and आप जो आपको सैलरी जो दी जा रही है उससे आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो. So every type of question is asked from them. So it is time consuming, क्योंकि एक एक एम्प्लॉय से आपको क्वेश्चंस पूछ के इंफॉर्मेशन निकालना है ना. सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. इसे कहते हैं इंटरव्यू मेथड. ठीक है. नेक्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन मेथड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड? ऑब्जर्वेशन मेथड मीन्स देखकर. सिर्फ आप आइए, ओके, और आप कंपनी में देखिए लोग कैसे काम कर रहे हैं.
उनका रूटीन वर्क जो है वो कैसा है, ओके, और उनको क्या दिया जाता है, काम ड्यूटीज में क्या क्या दिया जाता है, एंड नोट्स बनाते हैं। अभी इसमें जॉब एनालिस्ट क्या करता है, नोट्स बनाते हैं कि मैंने क्या क्या देखा, उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिपोर्ट के फॉर्म में नोट किया जाता है, ठीक है। और एक चेकलिस्ट बनाई जाती है इसमें, जिसको चेकलिस्ट समझते हैं क्या होता है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो चेकलिस्ट बनाते हैं ना, कि मैंने ये चीज ले ली, मैंने ये चीज ले ली, कुछ भूल तो नहीं गए, ये वाला भी ले लिया, आई हैव टेकन दिस आल्सो, ओके। सो दिस इज नोन एज चेकलिस्ट। सो इंटरव्यूअर भी जो एनालिस्ट होता है, जॉब एनालिस्ट, वो भी क्या करता है, चेकलिस्ट बनाता है। तो चेकलिस्ट में क्या करता है, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो उसको चाहिए होते हैं ना, उसके आंसर्स उसको मिले कि नहीं मिले, ऑब्जर्वेशन करके, सिर्फ देखकर मिले कि नहीं मिले उसको चेक करता है। आर यू फॉलोइंग मी, एम आई ऑडिबल? यस, is it clear, any doubt? Yes, ma'am. Okay, so the analyst has to put a tick No, mark. ma'am. Yeah, the analyst has to put a tick mark against all those tasks that he observes the employee's performance. मतलब that he observes the employee performs, मतलब जब एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, आपने सिर्फ देखना है कि कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या टाइमिंग्स में एम्प्लॉय आ रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, एंड देन हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क, हाउ दे आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक ये ऑब्जर्वेशन मेथड चलता है। So a bit time consuming but less than interview method. It is also bit time consuming but yes it is less than interview, क्योंकि इंटरव्यू में आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है क्वेश्चंस पूछने के लिए। Here you can observe yourself. आया समझ में सबको ये? Yes, ma'am. अभी देखो नेक्स्ट है थर्ड, क्वेश्चन आयर मेथड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। क्वेश्चन आयर मेथड, क्वेश्चन आयर मेथड क्या होता है, व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन कैसे कैसे रिटन फॉर्मेट में, ठीक है। कंसिडरेबली टाइम कंज्यूमिंग होता है ये भी, बट लेस देन इंटरव्यू मेथड। अगेन क्यों इंटरव्यू में, क्योंकि आपको ओरली क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, यहाँ पे आपने रिटन फॉर्मेट में क्वेश्चंस को टाइप कर दिया और अभी आप हर एम्प्लॉय को बोलते हो कि इसको मुझे भर के दो। जस्ट एज वी सेंड यू गूगल फॉर्म्स नो, कि आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल फॉर्म भर दो, या सेल्फ एनालिसिस के लिए अभी जैसे मैम ने आपको गूगल फॉर्म भेजा था, तो वो गूगल फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि आप इससे सेटिस्फाइड हो, ये कैसा है, आपका सिलेबस अच्छा है कि नहीं, आप सिलेबस से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यू गाइस, राइट, इन अ क्वेश्चन आयर मेथड। सो दैट इज नोन एज क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर मीन्स रिटन फॉर्मेट में आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको उसको आंसर करना होता है टिक करके। सो अ करेक्ट ऑप्शन हैज टू बी टिक्ड, मतलब आपके हिसाब से जो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट मेथड होता है आपका वर्क पार्टिसिपेशन मेथड। अब ये क्या होता है, वर्क पार्टिसिपेशन मतलब अभी जो जो चाहता है, यस गाइस एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. सॉरी आई डिड नॉट कम टू नो व्हेन इट गॉट डिस्कनेक्टेड। अभी आवाज क्लियर है सबको, स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, देयर इज सम इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग नहीं है इंटरनेट कनेक्शन आज, सो यू गाइस हैव टू बियर। अच्छा मुझे बताओ अभी कहाँ तक आपने सुना, क्वेश्चन आयर मेथड हो गया ना, ठीक है, हमने वर्क पार्टिसिपेशन मेथड स्टार्ट किया। व्हाट इज वर्क पार्टिसिपेशन मेथड? नाउ जॉब एनालिस्ट क्या करता है यहाँ पे, जॉब एनालिस्ट मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। सो व्हाट डज ही डू हियर, what does he do? He himself performs the work and then gain the information, उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो खुद ये जॉब करके देखेगा और फिर वो जानेगा कि अच्छा ये जॉब ऐसा है, इसकी ड्यूटीज ऐसी हैं, इसमें इतना काम लगता है, इतने इसमें इतना नंबर ऑफ आवर्स लगता है, उसमें ये स्किल्स चाहिए, उसमें ये स्किल्स नहीं चाहिए।
Are you getting my example? Yes, ma'am. Yeah. So that is known as work Yes, ma'am. participation method. Okay. So that is known as work participation method. मतलब वो खुद जॉब एनालिस्ट जिसको इंफॉर्मेशन निकालनी है वो खुद इस पर पूरा काम करता है. ठीक है, मतलब खुद से वो पूरा ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से लेगा और उसको टाइम से फुलफिल करके देखेगा कि हो रही है कि नहीं हो रही है और उसमें कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, टेक्निकली जॉब कितना कितना टफ है और कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब कितना इजी है और कितना कॉम्प्लेक्स है, और अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे टू परफॉर्म कंप्लीट जॉब. तो वो सब वो खुद करके देखेगा. ठीक है, critical incident method, last method, fifth method, that is critical incident method. Now what is known as critical incident method? जिसमें ना आपका बिहेवियर चेक किया जाता है. आपको है ना एक एक क्रिटिकल मतलब डिफिकल्ट इंसिडेंट में डाल दिया जाएगा जिससे आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा कि आप पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो कि नेगेटिवली, एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो, गुस्सा आ जा रहा है आपको जब पूरा नहीं हो रहा है काम, कि आप शांति से उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे हो. So what is your behavior? So that is going to be मैम आवाज ब्रेक हो रही है. observed. फिर से ब्रेक हो रही है? अभी ब्रेक हो रही है कि अभी ठीक है? यस, अभी ठीक आ रही है आवाज कि अभी ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है मैम. ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है मैम. ओके, अभी आवाज आ रही है? Is it now clear? Yes, ma'am. यस मैम. So critical incident method means आपको ऐसी इंसिडेंट में डाला जाता है, ऐसी एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें क्रिटिकल मीन डिफिकल्ट सिचुएशन चेक करने के लिए कि आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कि नेगेटिवली. पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं जब काम खत्म नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, या फिर नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं मतलब आप एग्रेसिव हो जा रहे हैं और ठीक से टीम में बात नहीं कर रहे हैं किसी से और गुस्सा हो जा रहे हैं. सो दिस इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव बिहेवियर. सो क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक से आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसमें सिचुएशन में आपको चेक किया जाता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. आर यू फॉलोइंग? यस, समझ आ रहे हैं? यस मैम. यस मैम. सो इसे कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड विच हाईलाइट्स दोज बिहेवियर्स और एक्टिविटीज दैट आर क्रिटिकल, मतलब वाइटल होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं टू बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. मतलब आपके जॉब के बारे में जानकारी निकालने के लिए आपका बिहेवियर चेक किया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर जॉब में कैसे बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, सो ये 5 मेथड्स थे. ठीक है, फर्स्ट मेथड था इंटरव्यू मेथड, सेकेंड मेथड था आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड नेक्स्ट मेथड था आपका क्वेश्चन आयर, नेक्स्ट वर्क पार्टिसिपेशन जिसमें खुद वो पार्टिसिपेट करके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और लास्ट मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जिसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है कि आप कैसे जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिवली बिहेव करके, नेगेटिवली बिहेव करके. आया समझ में? क्लियर है सबको? कम ऑन, गिव मी क्विक आंसर्स. यस मैम. या Yes, ma'am. अब जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज इम्पोर्टेंस? व्हाई डू वी नीड टू टेक अप जॉब एनालिसिस? व्हाई डू वी नीड टू डू दिस? क्यों? क्योंकि मुझे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि कितना कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की, नेचर क्या है जॉब का, वो सारी जानकारी तो मुझे जॉब एनालिसिस से मिलेगी ना. तो ये ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि कितने लोग चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए मुझे सामने वाले पर्सन में, और स्किल्स भी क्या चाहिए. तो ये प्लानिंग में होता है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है. अच्छा, और किस पर्पस से हम जॉब एनालाइज करते हैं? क्योंकि मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है
और जॉब की प्लेसमेंट करनी है। मतलब रिप्लेसमेंट मतलब सिलेक्शन, मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है, अपॉइंट करना है। तो उसके स्किल्स को चेक करके, एक्सपीरियंसेस को चेक करके, क्वालिफिकेशन को चेक करके। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब जो जो आपने अ, अ, हाँ वेरी गुड हलीमा, पेरोल भी डिसाइड करना है, ट्रेनिंग देनी है। तो मतलब आपको है ना, जॉब एनालिसिस क्यों करना है उसके रीजंस आपको बताने हैं। अब ट्रेनिंग देनी है, कितने लोगों को ट्रेनिंग की नीड है, कितने लोगों को नहीं है। सो ये भी तो आपको जॉब एनालिसिस से ही पता चलेगा, क्योंकि जॉब एनालिसिस का मतलब ही होता है जॉब और लोगों के बारे में जानकारी निकालना। तो जानकारी निकालने के बाद ही तो पता चलेगा ट्रेनिंग कितने लोगों को देनी है और कैसी ट्रेनिंग देनी है, कितने फ्रेशर्स हैं। वेरी गुड। ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमको उनको ट्रेनिंग देनी है। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशंस मतलब हमको एम्प्लॉयज को कितना कॉम्पेंसेट करना है, कितना कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, अगर ड्यूटीज बढ़ा दी तो सैलरी कितनी होगी, है ना, उसे कहते हैं कॉम्पेंसेशन, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिजाइन। मतलब कोई ऐसा टास्क है जिसमें जिसमें मशीन से रिलेटेड कोई टास्क है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई टास्क है, तो तो आपको उनको प्रॉपर स्किल्स चेक करने पड़ेंगे ना कि उनके उनके उसमें वो स्किल्स हैं कि नहीं है, वो लोगों में वो स्किल्स हैं कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको इंजीनियरिंग डिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज जॉब डिजाइन। डिजाइन का मतलब यहाँ पे बात क्या चल रही है कि जॉब इंटरेस्टिंग है कि लोग सेटिस्फाइड हैं जॉब से, इंटरेस्टिंग है लग रही है उनको, क्या उनकी स्किल से मैच कर रही है जॉब, समझ में आ रहा है, तो उनकी जो एबिलिटीज है उनके साथ मैच कर रही है जॉब, क्या उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ मैच कर रही है जॉब कि नहीं कर रही है, वो भी चेक करने के लिए भी तो जॉब एनालिसिस करना पड़ता है ना, तो उसे कहते हैं जॉब डिजाइन। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मतलब मुझे जॉब एनालिसिस इसलिए भी करना है क्योंकि मुझे पता चले कि सामने वाला पर्सन जॉब को ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस उसका चेक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि आपको आपको देखना है कि सामने वाला ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब पे परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब अगर कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अटेंड कर पाएगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी अटेंड। ठीक है। तो इसलिए आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रखना पड़ता है, मतलब सुपरविजन जैसे काइंड ऑफ, कि सुपरविजन करनी है मुझे, कि देखना है कि सारे लोग सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा है जिसको ट्रेनिंग की नीड है, वो तो तब पता चलेगा ना जब मैं जानकारी निकालूंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए जानकारी निकाली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के लिए भी मुझे जॉब एनालिसिस करना पड़ता है। जॉब बहुत टफ है, चैलेंजिंग है, और है ना मतलब मशीन्स ऐसी ऐसी हैं जिससे हाथ भी कट सकते हैं अगर ट्रेनिंग नहीं दी तो। ठीक है। आपके हेल्थ पे भी आ सकता है, केमिकल्स हैं, हमारी फैक्ट्री में केमिकल्स बनते हैं, तो हमको लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स मतलब मास्क देने हैं उनको, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ उनको प्रोवाइड करने की केमिकल्स उनके अंदर नहीं चले जाएं। ठीक है। वो इनहेल नहीं हो जाए केमिकल्स। ठीक है। कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग मतलब आपको एम्प्लॉयज के कैरियर के बारे में भी सोचना है। ठीक है। उनको डेवलप करना है, सिर्फ अपनी कंपनी को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट एम्प्लॉयज ऑल्सो एंड देयर कैरियर। नेक्स्ट इज प्लानिंग एजुकेशनल करिकुला। ना एजुकेशनल करिकुला प्लान करना है, जैसे कुछ कुछ जो लोग आ जाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे प्लान करना जैसे वो उनको आगे चल के एजुकेशन मिले, मतलब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हुए वो पढ़ सकें, आगे और भी पढ़ सकें। तो इसको कहते हैं प्लानिंग एजुकेशनल करिकुला। मतलब आपकी कंपनी में ही आप ऐसा करिकुलम मेंटेन कीजिए जिसमें उनको एजुकेशन मिले एम्प्लॉयज को। वोकेशनल काउंसलिंग। वोकेशनल काउंसलिंग मतलब एडवाइस, काउंसलिंग का मतलब होता है एडवाइस देना कैरियर के बारे में। वोकेशनल मतलब कैरियर के बारे में, आपका प्रोफेशनल कैरियर कैसे बढ़े, आप प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ो, उसके लिए आपको गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है। तो उसको कहते हैं वोकेशनल काउंसलिंग। इज इट नाउ क्लियर? Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. बेनिफिट है ना,
कैरियर प्लानिंग के बाद जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो इंफॉर्मेशन है वो बेनिफिट्स हैं। ओके, अब है ना ओके देखो, मैम। हाँ अब है ना देखो, जॉब इवैल्यूएशन मतलब अब तक हमने जो भी पढ़ा ना वो जॉब एनालिसिस के बारे में था। जॉब एनालिसिस में दो चीजें होती हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, एक जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। आई बात समझ में सबको? जॉब एनालिसिस के बारे में मेथड्स पढ़े, यस मैम। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस हमने किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन किया, और मेथड्स के बाद हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट, हाँ, नेक्स्ट वी हैव जॉब इवैल्यूएशन। अब ध्यान से देखना, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, आप है ना, जितने लोग हैं आपकी कंपनी में, डिफरेंट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव डिफरेंट पे पैकेट्स, मतलब अलग अलग उनको पे पैकेट्स मिलते हैं, अलग अलग सैलरीज पे अलग अलग लोगों को रखा जाता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इवैल्यूएट कर रहे हैं हम, जानकारी निकाल रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि इसके जॉब के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कम है और फिर भी इसको पेमेंट ज़्यादा है, और इसके नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग आवर्स ज़्यादा है और फिर भी इसको पेमेंट कम है। एक क्लर्क की पोजीशन पे होने वाला पर्सन, उसकी सैलरी कम होती है, वेर एज अगर एक मैनेजर की पोस्ट पे रहने वाला पर्सन है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये हम कैसे जानकारी निकालते हैं, जॉब इवैल्यूएशन। कैसे पता लगता है इसके वर्किंग आवर्स, इसकी क्वालिटी ऑफ द वर्क, इसका सैलरी पेमेंट, ठीक है, कैसे पता लगता है, थ्रू जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, दिस इज बिकॉज डिफरेंट जॉब्स हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ वैल्यू, मतलब आपके जॉब की वैल्यू अलग है मार्केट में और मेरे जॉब की वैल्यू अलग है। आप एक अकाउंटेंट हो, आप जो मार्केट में वैल्यू है अकाउंटेंट की, वो उसकी वैल्यू अलग है, लेकिन अगर एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी मार्केट में वैल्यू अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जितनी जिसकी वैल्यू होगी उतना उसको पेमेंट मिलेगा। So employees on the job that are critical to the success of the organization receives highest salary, मतलब जिनको बहुत टफ जॉब होता है ना उनको सैलरी ज्यादा मिलती है, वेरएज जिनका जॉब थोड़ा थोड़ा मतलब नॉर्मल जॉब होता है उनको सैलरीज भी कम मिलती है। बेसिकली देखा ऐसे ही गए, ठीक है। सो जॉब इवैल्यूएशन से हमको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हम एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं वो फेयर इनफ सैलरीज हैं कि नहीं है, क्या वो एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है, एम्प्लॉयज के बारे में जानकारी निकालना। इफ द सैलरी इज पुअर देन एम्प्लॉय विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, दे विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल चूज सम अनदर कंपनी हु इज गोइंग टू पे देम मोर। सो ये भी तो प्रोडक्टिविटी रुका देगी ना आपकी, कि एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ये भी तो आपकी कंपनी के लिए सही नहीं है कि एम्प्लॉय सारे छोड़ के चलते जाएंगे, आपको बार बार न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना पड़ेगा, बार बार रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, बार बार ट्रेनिंग प्रोसीजर, तो ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा भी करना पड़ता है। सो दैट्स एनीवेज नॉट अ गुड ऑप्शन कि आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जा रहे हैं, है ना, फिर से ट्रेनिंग एंड ऑल, ठीक है। तो फिर से रिक्रूटमेंट पे खर्चा, इंटरव्यू करो, फिर इंटरव्यूअर के लिए इंटरव्यूअर अपॉइंट करो, एक्सपर्ट अपॉइंट करो, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है ना। तो बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन ये होता है, मतलब आपका जॉब का जो रिलेटिव वर्थ है ना वो निकालना। जॉब इवैल्यूएशन मीन्स, थर्ड पैराग्राफ में देखो, जॉब इवैल्यूएशन मीन्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जॉब की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है जॉब की, आपको कितनी लोगों को पेमेंट देनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी क्या है जॉब की, वो आपको चेक करनी है। So it is a process of determining the value of the job in terms of salary, wages, because आप salary and wages कब fix करते हो सामने वाले person की, जब आपको पता है मार्केट में ये जॉब की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। सो जॉब इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू जॉब एनालिसिस। जब तक आप जॉब एनालिसिस नहीं करते हो तब तक जॉब इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जॉब एनालिसिस में ही तो पहले जानकारी निकालोगे ना, और उसके बाद जॉब को इवैल्यूएट करोगे कि अच्छा इसकी मार्केट में इतनी वैल्यू है। पहले जानकारी तो निकाल लो, जॉब कैसा है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए सामने वाले पर्सन की,
उसके बाद आप उसको इवैल्यूएट करो कि मार्केट में ऐसे पर्सन की जो इतना क्वालिफाइड है, मेल है कि फीमेल है, उसका रिलीजन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उसका एजुकेशन क्या है, और उसको ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, तो मार्केट में ऐसे पर्सन की वैल्यू क्या है, जॉब की वैल्यू क्या है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थ्रू जॉब इवैल्यूएशन. अभी देखो वेंडल फ्रेंच का एक डेफिनेशन दिया हुआ है. जॉब इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ द वेरियस जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ही ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन जॉब्स अलग अलग हैं. जैसे एक क्लर्क की जॉब है, अभी आप कॉलेज में ही देखो, एक प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, एक क्लर्क की पोस्ट होती है, टीचर की पोस्ट होती है ना, मतलब प्रोफेसर की पोस्ट होती है. तो अलग अलग पोस्ट होते हैं ना. आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो मैनेजर की पोस्ट होती है, डायरेक्टर की होती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिनेंस डायरेक्टर होता है, फिनेंस मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं. सो उनके नीचे काम करने वाले उनके उनके सुपरवाइजर्स एंड जनरल मैनेजर्स होते हैं. जनरल मैनेजर्स के बाद होते हैं एम्प्लॉयज, है ना. तो हर एक की पोजीशन अलग अलग होती है. एक ही जॉब में बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं. तो एक एक जॉब की वैल्यू क्या क्या है मार्केट में, रिलेटिव वर्थ क्या है उसका, वो निकालने के लिए, सो दैट द डिफरेंट वेजेस में बी पेड टू जॉब्स ऑफ डिफरेंट वर्थ. मतलब जो मैनेजर का काम है उसको कितना सैलरी पे करना चाहिए, और जो एम्प्लॉयज को पे करना है उसको कितना पे करना चाहिए. So different wages will be paid to the different jobs worth. Is it clear, everybody? Yes, ma'am. Yeah. So this is the definition of job evaluation. Okay. Now, importance of job evaluation. Let us quickly go through all the points. To develop a consistent wage policy. किसी को आप सेम पोस्ट पे है, दो जन, ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब बता रही हूँ. किसी को आप दो लोग सेम पोस्ट पे हैं, किसी को आप 30,000 का पे दे रहे हो और किसी को आप 20,000 का पे दे रहे हो, नहीं चलेगा ना. कंसिस्टेंट होना चाहिए. मतलब आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रख रहे हो, वेज पॉलिसी रख रहे हो, आपकी जो सैलरी की पॉलिसी है वो रख रहे हो, जो आप पेमेंट की, वो कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए. जो इंक्रीमेंट भी है वो रेगुलरली हो और जो सबके लिए इक्वल हो. ठीक है. टू डिटरमाइन द रेट ऑफ पे फॉर ईच जॉब. हर एक जॉब, मतलब बहुत सारी जॉब्स होती है ना कंपनी में, तो हर एक जॉब के लिए कितना कितना पे होना चाहिए वो डिटरमाइन करने के लिए जॉब इवैल्यूएशन करना पड़ता है. हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन के. टू एंश्योर लाइक वेजेस आर पेड टू ऑल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज. सबको आपने सेम सेम सैलरी दे रहे हो अगर सेम सेम पोस्ट है तो. फॉर लाइक वर्क लाइक वेजेस आर टू बी पेड फॉर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज. लाइक वेजेस लाइक वर्क, सेम काम के लिए सेम सेम वेजेस आप सबको पे कर रहे हो. ठीक है. टू एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसी एंड इनइक्वालिटीज इन द वेजेस. ये तो पहली वाली बात ही बोल रहा है. फर्स्ट पॉइंट जो बोली थी ना, बिल्कुल वैसी बात उसने दूसरे वर्ड्स में रिपीट कर ली. आप ऐसा सिस्टम निकाल दो अपनी कंपनी से जो इनकंसिस्टेंट है और इनइक्वालिटी को मेंटेन करता है. मतलब आप सेम पोस्ट पे जो 4-5 बंदे हैं उनको, उनमें से एक को ज्यादा सैलरी दे रहे हो, एक को कम दे रहे हो, जबकि ऑल्दो एवरीवन अमंग्स देम आर फ्रेशर्स. सो आप इनइक्वालिटी तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि ये मेरे जो रिलेटिव है ना उनके पहचान से ही आया है, और ये तो इस कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिए पहचान से आया है, और ये तो ऐਵੇਂ ही आया है तो इसको सैलरी कम दे दूं. ऐसे तो नहीं कर सकते ना. सो ये ना हो इसीलिए जॉब इवैल्यूएशन होता है. No discrimination. Very good. Okay. So next is to establish a rational basis for fixing incentives, bonus plans, etc. आप कंपनी में जितने भी लोगों को बोनस देते हो, इंसेंटिव्स देते हो, परक्विजिट्स देते हो, या फिर कोई अलावेंसेस देते हो, तो उनको रैशनल बेसिस पे फिक्स करो. रैशनल मतलब जो जो लॉजिकल बेस है, लॉजिक है जिसमें पीछे. आप एवं नहीं किसी को भी कुछ भी दे दोगे, नहीं क्योंकि मेरा रिलेटिव है, नहीं. रैशनल बेसिस पे जो सबके लिए लागू हो और जो रैशनल हो, जो जो लॉजिक जिसके पीछे लॉजिक लगता है. ठीक है. टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर पीरियोडिक रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ वेज रेट. मतलब आपको वेज रेट को रिवाइज करते रहने का. रिवाइज मतलब
कैसे कैसे हर साल आप इंक्रीमेंट दोगे, उसका फ्रेमवर्क बना के रखो कि कोई भी आपसे क्वेश्चन ना कर पाए कि इस बार मुझे इंक्रीमेंट कम क्यों मिली। ठीक है, आप फ्रेमवर्क उसका बना के रखो, एवरी परफॉर्मेंस बेस्ड आपको दिया जाएगा इंक्रीमेंट, तो वो आपको बताना पड़ता है ना एम्प्लॉइज को। ठीक है, थ्रू योर फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर वेज नेगोशिएशन विद ट्रेड यूनियंस। मतलब आपको पता होगा ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं। जब देखो, जब वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं ना, तो वो ट्रेड यूनियंस के जरिए जाते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स बना हुआ रहता है, वर्कर्स का ना जो ग्रुप बना होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन का जो हेड होता है ना, वो नेगोशिएट करता है किसके बारे में, वेज मतलब वेजेस, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। तो कितनी हमारी सैलरी होनी चाहिए, अगर किसी को कम मिल रही है तो उसके लिए हम हड़ताल करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस आपको प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई, वेज नेगोशिएशन करके वो ट्रेड यूनियन के जरिए आप सॉल्व कर सकते हो। To minimize if not eliminate wage description on the basis of age, gender, caste, region etc. किस देश में आप रहते हो, किस कंट्री में, किस स्टेट में आप रहते हो, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो, जेंडर की वजह से अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब फीमेल को कम दिया जा रहा है मेल को ज्यादा, या वाइसा वर्सा, एक ही पोस्ट है लेकिन फीमेल को कम मेल को ज्यादा, एज फैक्टर की वजह से अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मिनिमाइज तो करें, वो बोल रहे हैं। टू मिनिमाइज इफ नॉट एलिमिनेट, अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट मिनिमाइज तो करें, कम तो करें डिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वालिटी है वो कम तो कर सकते हैं हम। तो वो कैसे कम कर सकते हैं, जॉब इवैल्यूएशन के जरिए। हम वही तो पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अब उसको ऑब्जेक्टिव्स बोलो, इम्पोर्टेंस बोलो, एक ही बात है। पर्पस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपके एडवांटेजेस। जॉब इवैल्यूएशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं देखते हैं क्विकली। लॉजिकल प्रोसेस है ये, ठीक है, इसमें रैशनल प्रोसेस यूज किया जाता है जो लॉजिकल होगा, जो सबके लिए सेम फॉलो होता है कंसिस्टेंट बेसिस पे। न्यू जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं मार्केट में, ठीक है, पता लगता है न्यू जॉब्स कितनी है। इम्प्रूव रिलेशंस एंड रिड्यूस ग्राइवियंसेस। अब क्योंकि रूल्स बन गए ना, ट्रेड यूनियन बन गया, अब रूल्स बन गए, जॉब इवैल्यूएशन के जरिए जानकारी मिल गई कि जॉब की वैल्यू क्या है मार्केट में, तो कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, ग्रजेस कम होते हैं, कंप्लेंट्स कम होती हैं, रिड्यूस ग्राइवियंसेस मतलब कंप्लेंट्स कम होती हैं और रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में चल रहे हैं ना। सो नीदर एम्प्लॉय विल बी डिससैटिस्फाइड नॉर एम्प्लॉयर। ओके, यूनिफॉर्मिटी फॉलो होती है, यूनिफॉर्मिटी मतलब सबके लिए सेम, वेज रेट सबके लिए सेम। ओके, सो दैट इज यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट इज रेट द जॉब नॉट द मैन। अब इसमें हम इंसान की वैल्यू नहीं निकालते, किसी पर्सन की वैल्यू नहीं निकालते, जॉब की वैल्यू निकालते हैं। जो पर्सन जॉब करने वाला है ना, उस जॉब की वैल्यू क्या है, मतलब अकाउंटेंट की वैल्यू, अकाउंटेंट का जो जॉब है उसकी वैल्यू क्या है। किसी पर्सन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, किसी पर्सन को हम तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, नहीं, पर वो जो जॉब परफॉर्म करने वाला है उसको वैल्यू कर सकते हैं। एग्जामाइन डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब जैसे रिस्क कितना इन्वॉल्व है, स्किल्स कौन से चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। अगर बहुत एडवेंचर जॉब है तो फिर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा एम्प्लॉयज का, है ना। तो वैसे फैक्टर्स आपको जानकारी निकालने में हेल्पफुल होता है, क्या, जॉब इवैल्यूएशन। एंड जॉब हेरारकी, पता लगता है कि जॉब हेरारकी में आपकी पोजीशन क्या है, क्लर्क की पोजीशन है कि उसके नीचे एम्प्लॉय की है कि मैनेजर की है कि डायरेक्टर की है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। तो जॉब हेरारकी जानने के लिए भी जॉब इवैल्यूएशन करना पड़ता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. You all need to join again. Less than 1 minute is pending, so you all need to join again. Okay, join right away.